علیکم. آج ہم انڈسٹری کیمسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے جو کہ ہے اسٹیم پروڈکشن اینڈ اٹس یوٹیلائزیشن فار پاور اینڈ انرجی جنریشن. ماڈرن ورلڈ کا اسٹارٹ انڈسٹریل ریولوشن سے ہوا تھا. انڈسٹریل ریولوشن 1700 صدی سے شروع ہوا تھا اور انڈسٹریل ریولوشن جس ٹیکنالوجی پر بیس تھا وہ اسٹیم انجن تھا. اٹ از سیڈ دیٹ وداؤٹ انڈسٹریل ریولوشن جو کہ انگلینڈ سے 17 اور 1800 صدی میں سٹارٹ ہوا تھا، ماڈرن ورلڈ پاسبل نہیں تھا اور اسٹیم انجن کے بغیر انڈسٹریل ریولوشن پاسبل نہیں تھا. 18 اور 19 سنچری میں اسٹیم انجن نے بڑے بڑے صنعتی یونٹ چلائے. پسٹن کی مدد سے اسٹیم انجن کی مدد سے ریلوے چلائے گئے، ریلوے انجن چلائے گئے، جس کی وجہ سے انڈسٹریل گڈز جو انڈسٹریل ریولوشن میں پیدا کیا گیا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچایا گیا. تو ان 2-3 لیکچرز میں ہم کیا پڑھیں گے کہ اسٹیم جنریشن کیا ہے، بوائلر اور اسٹیم انجن کے ٹائپس کیا ہے، اور اس کے جو ڈفرینٹ پرابلمس ہے، جس طرح اسکیلس کس طرح بنتے ہیں اور اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں، سب پڑھیں گے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے، let's start from very basic. What is steam? Steam is the vapor form of water which has a very high energy. اگر ہائی انرجی اس کی نہیں ہوگی تو پھر یہ ورک ڈن کے لیے یوز نہیں ہوتا. تو اسٹیم کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیم از پروڈیوس بائی ہیٹنگ واٹر ان دا بوائلر اور اینی ادر اسٹیم جنریٹر. جو ایک آئیڈیل اسٹیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لیٹ می ڈرا اٹ فار یو. ایک کنٹینر ہوگا جس میں ایک وال لگا ہوگا اور وہ ایک پائپ کے ساتھ لگا ہوگا. آپ اس کنٹینر میں واٹر رکھیں گے اور اس کو نیچے سے ہیٹ کریں گے. جب آپ ہیٹ کریں گے تو واٹر انرجی ایبزارب کرے گا تو وہ اسٹیم بنے گا، اور اسٹیم اوپر جا کے کیا بنائے گا؟ ویپرز بنائے گا. اور ویپرز اوپر جا کے اسٹیم بنائے گا، اور اس اسٹیم کو یوز کریں گے ورک کے لیے. ورک کس طرح؟ آپ اس سے الیکٹریسٹی بنا سکتے ہیں، کمبسشن انجن چلا سکتے ہیں. موسٹلی جو اسٹیم سے کمبسشن انجن چلائے گئے وہ ایکسٹرنل کمبسشن انجن تھا. وہ بعد میں ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کریں گے. اگر آپ کو اسٹیم انجن سمجھنا ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے کچھ ٹرمینالوجیز اور کنسیپٹ سمجھنا ہوگا. تو لیٹ سٹارٹ. اس لیکچر میں ہم زیادہ وہ ٹرمینالوجی پڑھیں گے. اوکے، تو سب سے پہلا ٹرمینالوجی جو ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے پی سی میں بھی پڑھا ہے، 9th میں بھی پڑھا ہے، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ بوائلنگ پوائنٹ. واٹ از مین بائی بوائلنگ پوائنٹ؟ بوائلنگ پوائنٹ ہم کیسے کہتے ہیں؟ دا ٹیمپریچر ایٹ وچ ویپر پریشر آف اے لیکوڈ بیکم ایکول ٹو ایکسٹرنل پریشر. اگر آپ کو اسٹیم جنریشن اور اسٹیم انجن سمجھنا ہے تو بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے آپ کو کنسیپچولی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. تو لیٹ اسٹارٹ دا کنسیپٹ آف بوائلنگ پوائنٹ. کنسیڈر اے کنٹینر. ایک کنٹینر ہے ہمارے پاس جو کہ لیکوڈ سے فل ہے. اب یہ کنٹینر اوپن ہے اور ہمارے پاس ایکسٹرنل پریشر 1 ایٹماسفیرک پریشر ہے. اب ہم کیا کریں؟ اس لیکوڈ کو ہم نے ہیٹ کرنا شروع کیا. اب اس میں واٹر مالیکول پریزنٹ ہے. جب ہم ہیٹ کرتے جائیں گے تو واٹر کا مالیکول، آپ سب کی آبزرویشن ہے، چائے تو سب نے بنائی ہوگی نا، کہ واٹر کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھے گا. لیکن جب 100 تک پہنچ جاتا ہے واٹر کا ٹیمپریچر، یہاں 100 تک، تو کیا ہوگا؟ آپ پھر جتنا بھی اس کو ہیٹ کریں تو واٹر کا ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا. رائٹ، یہ سب سے آبزرویشن ہے. سو بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ the temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to external pressure. Now question arise کہ جب بوائلنگ پوائنٹ ریچ ہو جاتا ہے، جب واٹر کا ویپر پریشر ایکسٹرنل ویپر پریشر کے برابر ہوتا ہے، تو پھر مزید ٹیمپریچر کیوں نہیں بڑھتا؟ تو اس کا آنسر بہت آسان ہے کہ واٹر لیکوڈ میں واٹر مالیکول ہے جس کی اپنی ایک خاص کائنیٹک انرجی ہے. جب آپ اس کو ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ کائنیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لیکوڈ کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے. جب بوائلنگ ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، بوائلنگ ٹیمپریچر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہیٹ پھر سپلائی کرتے ہیں تو
वाटर अपनी मैक्सिमम हीट कैपेसिटी पूरी कर देता है। फिर जो आप हीट सप्लाई करती है तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसके बाद आप इसको और ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इस दौरान जो आप हीट सप्लाई करेंगे तो वो किस लिए यूज़ होगा, वो द हीट सप्लाई टू द लिक्विड विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरनल फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके अगेंस्ट यूज़ होगा। तो यही वजह है कि एट बॉइलिंग टेम्परेचर लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसके अलावा आपने पीसी में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का एक बहुत क्लियर ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करेगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ 1 एटमॉस्फेयर की जगह 2 एटमॉस्फेयर लगाऊँ, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाऊँ, तो फिर वाटर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। वाटर का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा। सिंपली मैं कह सकता हूँ कि वाटर की हीट एब्जॉर्बेंस की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये पॉइंट आप नोट करें कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट। इसका क्या मतलब है, सेचुरेटेड सोल्यूशन तो आपने पढ़ा होगा। सेचुरेटेड सोल्यूशन कैसे कहते हैं, इफ़ एट ए गिवन टेम्परेचर यू कांट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, इट इज़ कॉल्ड सेचुरेशन। मतलब सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हैं वो आपने डिजॉल्व किया उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर। तो सिमिलरली जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एट बॉइलिंग टेम्परेचर आप मज़ीद हीट वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, डेट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वाटर की सेचुरेटेड पॉइंट, सेचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हीट एब्जॉर्बेंस। सो ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कर ले कि एट बॉइलिंग पॉइंट water cannot absorb more heat because the kinetic energy of molecule become constant and maximum. The extra heat added is used to convert water into vapor. जब सेचुरेटेड पॉइंट रीच हो जाता है तो इसके बाद आप जो हीट सप्लाई करते हैं वो किसके अगेंस्ट यूज होता है, इट इज़ यूज अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर सारा का सारा हीट जो आप सप्लाई करते हैं वो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। ओके, इन सारे कंसेप्ट को एक डिटेल से पढ़ते हैं अरेंज फॉर्म में। देखिए नाउ एक और पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल of a liquid into vapor state। वेपर 1 मोल ऑफ ए लिक्विड आप किस में कन्वर्ट करें, वेपर स्टेट में, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। चूंकि वाटर में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए वाटर इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या होता है, हमारे पास फेज चेंज होता है। मतलब आप देखें कि जब आप वाटर का फॉर एग्जांपल 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और आप इसको हीट करते जाएं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वाटर लिक्विड स्टेट में होगा 100 सेंटीग्रेड तक। इसके बाद जो आप हीट सप्लाई करेंगे तो वेपर फेज में चेंज होगा, तो इसलिए इससे फेज चेंज होती है। सो लेट से आपने वाटर लिए कंटेनर में, आपने हीट किया, जब आपने हीट किया तो नो फेज चेंज अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल 20 से स्टार्ट किया, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नाउ जब टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इसको हम सेचुरेटेड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि इसने मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद आप जब इसको हीट करेंगे तो इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। लेटेंट हीट क्यों, क्योंकि इसके बाद जो आप हीट देंगे वो वाटर को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, हमारे पास फिर फेज चेंज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, फिर आप जो हीट दे रहे हैं वो
काइनेटिक एनर्जी आप मॉलिक्यूल इंक्रीज करने के लिए यूज़ नहीं होगी, बल्कि लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी। इसके बाद क्या होगा, स्टीम बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम का क्या मतलब है, अगर स्टीम का टेम्परेचर वही है जो कि सैचुरेटेड वाटर का है तो इसको हम सैचुरेटेड स्टीम कहेंगे। अब सैचुरेटेड वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 सेंटीग्रेड है तो इसको भी हम 100 सेंटीग्रेड कहेंगे, राइट। इसके बाद जब आप हीट करेंगे सैचुरेटेड हीट को तो क्या बनेगा, नो फेज चेंज, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम बना है तो इसके बाद आप हीट करेंगे तो स्टीम से तो कोई और नहीं बनता ना, नो फेज चेंज होगा। टेम्परेचर पर इंक्रीज होगी। अब टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी जो आप हीट दे रहे हैं दैट इज यूज्ड अगेंस्ट व्हाट, दैट इज नॉट यूज अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि अभी तो वो सारा वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ है। अभी जो आप हीट दे रहे हैं इट इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और उसके बाद जो आप हीट सप्लाई करेंगे तो सुपर हीटेड स्टीम बनेगा। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब क्या है कि अभी स्टीम का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से इंक्रीज होगा, मोस्टली 120 सेंटीग्रेड तक हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास जो हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस हुआ है उसको आप वर्क डन के लिए यूज करते हैं। वर्क डन आप किस तरीके से ले सकते हैं, एक टरबाइन इससे चला सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडर्स आपको पता है, जो आपने यू कैन से कौन सा लॉ पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जो फ्रेंच साइंटिस्ट था, तो आप इसको पिस्टन को एक्सपेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको हम वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टीम एनर्जी के जो कि हीट फॉर्म में होता है इसको इलेक्ट्रिसिटी और अदर फॉर्म ऑफ वर्क में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली स्टीम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के तौर पे काम करता है, वो कमिंग टॉपिक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली स्टेप बी, ये पॉइंट स्टेप बी एंड सी आर एबल टू डू वर्क, इस स्टीम से आप वर्क कर सकते हैं और सैचुरेटेड स्टीम से, तो ये स्टेप और ये स्टेप हमारे पास वर्क डन के लिए यूज होता है। नाउ इस पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। सैचुरेटेड स्टीम क्या है, व्हेन स्टीम प्रोड्यूस इज द सेम प्रेशर एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन दैट इज ऑफ सैचुरेटेड वाटर, कि स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ है उसका भी वही प्रेशर और टेम्परेचर हो जो कि सैचुरेटेड वाटर का हो, तो इसको सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। सुपर हीटेड स्टीम वो होती है कि उसका टेम्परेचर सैचुरेटेड हीट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करें तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 सेंटीग्रेड होगा, अगर आप इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अभी ये एग्जांपल थोड़ा सा कंसिडर करें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं, राइट। ओके, देखिए आपने एक कंटेनर स्टार्ट किया जिसमें लिक्विड है, वेपर फेज इंतहाई कम है। आपने क्या शुरू किया, व्हाट यू हैव डन, आपने यहाँ पे हीटिंग शुरू की तो वेपर फेज बना। अब जब वेपर्स और लिक्विड फेज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है तो फिर क्या बनेगा, सैचुरेटेड हॉट वाटर बनेगा और सैचुरेटेड स्टीम बनेगा। जब तक स्टीम इक्विलिब्रियम में है, वाटर के साथ कांटेक्ट में है, तो सैचुरेटेड स्टीम बनेगा। लेकिन जब आप इसको इतना गर्म करते हैं कि सारा के सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर चूंकि वाटर इसके साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जो हीट आप सप्लाई करते हैं दैट इज यूज अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेपर स्टेट, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सुपर हीटेड स्टीम बनता है। ओके, थैंक्स, दैट्स फॉर ऑल। इंशाल्लाह कल अपना नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। ओके, बाय।